Hello everyone. So in this video we'll be going to solve one question that is maximum sum in subarray. So maximum sum in subarray. So suppose array given to you is something like this. So the values are 1, 3 minus 1, 1, 3 minus 1, 4, 6, 8 minus 5 minus 4 and 3. So indexes are your like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So suppose a query given to you is to find the sum between index 1 to 5. सो ये आपको क्वेरी गिवन है. सो अब इसके बीच में देखते हैं अपना मैक्सिमम सम इस सब एरे में कितना निकल सकता है. तो 3 minus 1 that is your 2, 2 plus 4 is 6, 6 plus 6 is your 12, 12 plus 8 is your 20. If the query given to you is find the sum between 2 to 4, then it will be 4 and 6. That will be maximum, because if we add minus 1 then it will be your 9. So our maximum sum will be 10 in this subarray. And if the query given to you is find the sum between like 4 to 8, 4 to 8. So 6 plus 8 is your 14, 14. So now this is minus 9, and that is plus 3. So it will eventually decrement down from 14. So we'll take only 14. So maximum sum subarray between 4 to 8 will, the possible answer is your 14. So let's just see how we can solve it. One possible way is you can solve it using the Cadence algorithm. So like if a k query is given to you, k number of queries, then like for the Cadence algorithm, it takes big of n times. So that will comes out to be your k into n. But what we want is to solve is to solve this in an optimized form, like to decrement this value to k into log n. Okay, so k is the number of queries given to you, and log n is your time taken to solve this thing. So let's just see how we can solve this. So we can solve this by using the segment trees. Segment trees. So let's just see how we can do that. So using segment trees we can do. So the some this array is given to you. So what you need to do is you just need to divide it into two sub arrays. That is, one is your left, one is your right. So indexes are like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So from 0 to 3 will come over here, and from 4 to 6 over there. So 0, 1, 2, 3. And for the right we have uh, 4, 5, and 6. Okay, so now the maximum sum we can get is, so if we have to calculate the maximum sum, so that we can calculate it as left का maximum sum. So suppose हमको यहाँ से अपना maximum sum extract करना है कि वो क्या हो सकता है. तो वो ये हो सकता है कि आपका यहाँ से जो मैक्सिमम आ रहा हो एक वो पॉसिबल आंसर है, या फिर एक यहाँ से जो आ रहा हो वो एक पॉसिबल आंसर है. सो लिखते हैं लेफ्ट मैक्सिमम सम, मैक्सिमम सम, या फिर आपका हो सकता है राइट मैक्सिमम सम.
या फिर आपका हो सकता है कि लेफ्ट का मैक्सिमम सम, लाइक यहाँ से तो आपका पूरे का सम निकाल रहे हैं हम लोग, इधर का पूरा सम निकाल रहे हैं, यहाँ 0 से लेकर के 3 तक का, ठीक है? और प्लस इसमें कुछ आगे का दीज वैल्यूज हम ऐड कर दें, तो वो और बड़ी वैल्यू बना रही है। सो वो क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट का सम, एलएफ लेफ्ट का सम प्लस ये जो इसका प्रीफिक्स है, ये क्या है, राइट का प्रीफिक्स है। सो राइट का मैक्सिमम बेस्ट, जो बेस्ट पॉसिबल होगा, जो बेस्ट प्रीफिक्स पॉसिबल होगा, जो बेस्ट प्रीफिक्स सम होगा वो, ठीक है? और ऐसे ही हो सकता है अपना राइट के साथ, लाइक हम लोग राइट ले रहे हैं और इसमें से हम लोग यहाँ पे ये वैल्यूज ले लें, मतलब कि हम लोग लेफ्ट का सफिक्स ले लें, ठीक है? सो हम लोग राइट का राइट का सम लेंगे प्लस जो लेफ्ट है उसका जो बेस्ट सफिक्स पॉसिबल हो सकता है वो ले, या फिर अब लेफ्ट का जो है हम लोग बेस्ट सफिक्स सम ले सकते हैं, मतलब लाइक अगर कुछ ऐसा आ रहा है कि ये यहाँ 2 से लेकर के 5 तक का हमारा वो वैल्यू आ रही है मैक्सिमम जो पॉसिबल हो सकती है, सो वो अपना यहाँ से मतलब लाइक 2 to 3 दैट इज योर लेफ्ट का बेस्ट सफिक्स सम है, एंड जो इतना 4 से लेके 5 तक जो वैल्यू आ रही है आपकी, वो आपका राइट का बेस्ट प्रीफिक्स सम हो जाएगा। सो लास्ट पॉसिबल वैल्यू विच can be possible for maximum sum is, that is your left का best suffix sum प्लस राइट का आपका बेस्ट प्रीफिक्स सम। सो इन चार वैल्यूज में से, लाइक दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड, योर थर्ड, दिस इज योर फोर्थ एंड दिस इज योर फिफ्थ वैल्यूज, इन पांच वैल्यूज में से जो भी आपका मैक्सिमम होगा वो आपके मैक्सिमम सम में चला जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या क्या निकाल रहे हैं, एक मैक्सिमम सम, ये लेफ्ट, लाइक लेफ्ट का भी मैक्सिमम सम, ठीक है, इधर इज सेम टू सेम राइट का मैक्सिमम सम। अब हम और क्या निकाल रहे हैं, लेफ्ट का सम निकाल रहे हैं। सो मैक्सिमम सम तो हमने यहाँ पे रिजोल्व कर लिया, बट हमको अभी सम भी तो निकालना होगा। सम है, बेस्ट प्रीफिक्स सम है, ये भी निकालना होगा। तो यही राइट का सम है, तो मतलब वो भी सम ही है, और बेस्ट सफिक्स सम है वो भी निकालना होगा। सो अभी कितनी चीजें अभी बची हुई हैं, एक तो आपका सम बचा है, एक बेस्ट प्रीफिक्स सम बचा है, और बेस्ट सफिक्स सम बचा है। हमने मैक्सिमम सम निकलवा लिया है, अब ये तीन भी निकालना है। सो अब लाइक हम लोग चारों को ऐसे अलग अलग निकालें, उससे अच्छा है कि हम एक नोट बना ले जिसमें हम चारों को स्टोर कर सके, लाइक मैक्सिमम सब भी उसी में स्टोर कर सके, आपका सम भी उसी में स्टोर कर सकें, बेस्ट प्रीफिक्स सम भी उसी में स्टोर कर सकें, और आपका बेस्ट सफिक्स सम भी उसी में स्टोर कर सकें। सो ये जो आपका जो वैल्यू आपको भेजेगा ऊपर, जो आपको वैल्यू भेजेगा वो वैल्यू में मतलब उस नोड में क्या क्या होंगी, लाइक एक तो आपका मैक्सिमम सम हो रहा है, ठीक है, दूसरा आपका सम हो रहा है, सम की जरूरत पड़ रही है आपको, तीसरा आपका हो रहा है बेस्ट प्रीफिक्स सम, उसको लाइक बी पी एस लिख लेते हैं, और बेस्ट सफिक्स सम आपका मांग रहा है। सो बेस्ट सफिक्स सम, ये चार वैल्यू जो है राइट वाला और लेफ्ट वाला दोनों भेजेंगे, किसको, अपने डैडी को या लाइक पेरेंट नोड को। सो अब देखते हैं कि लाइक ये वैल्यू तो हमने निकाल ली है, अब ये वैल्यू लाइक सम, बेस्ट प्रीफिक्स सम और बेस्ट सफिक्स सम कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। सो अब सम जो होगा वो आपका हो सकता है लेफ्ट सम प्लस राइट सम। सो मतलब लेफ्ट से जो पॉसिबल सम आ रहा होगा वो प्लस जो आपका राइट से सम आ रहा होगा।
ये आपका सम हो जाएगा। आप ऐसे सम सॉल्व करेंगे, लाइक सम की वैल्यू निकालेंगे। अब बेस्ट प्रीफिक्स सम निकालना है। अब वो बेस्ट प्रीफिक्स सम क्या होगा? एक तो आपका जो लेफ्ट से आपका बेस्ट प्रीफिक्स सम आ रहा है वो हो सकता है लाइक लेफ्ट का लेफ्ट डॉट बेस्ट प्रीफिक्स सम, ये हो सकता है। या फिर सॉरी कॉमा, यहाँ पे कॉमा होगा। सो या फिर लेफ्ट का हम सम निकालें प्लस जो आपका राइट है उसका बेस्ट प्रीफिक्स सम निकालें। ये अभी डायग्राम में देखते हैं। इसका जो मैक्सिमम होगा वो होगा। या फिर तीसरा आपका बेस्ट सफिक्स सम जो हमको निकालना है वो होगा मैक्सिमम ऑफ राइट का बेस्ट सफिक्स सम, या फिर राइट का सम, दिस इज योर डॉट, प्लस लेफ्ट का बेस्ट सफिक्स सम। ठीक है, सो ये हो सकता है। अभी देखते हैं कैसे ये आ रहा है, ये तीनों वैल्यू लाइक ये इधर वैल्यू, इधर ही एक नया डायग्राम बना लेते हैं। अ, ये आपका लेफ्ट था और ये आपका राइट था। ठीक है, सो ये आपकी चार वैल्यू दे रहा होगा और चार वैल्यू लाइक मैक्सिमम सम, बेस्ट प्रीफिक्स सम और बेस्ट सफिक्स सम। अभी सम जो है, जो यहाँ से सम निकलेगा, जो मतलब फाइनल सम हम लोग प्रोड्यूस करेंगे वो होगा आपका जो लेफ्ट से सम आ रहा होगा और जो राइट से सम आ रहा होगा, उन दोनों का एडिशन। बट अब जो ये बेस्ट प्रीफिक्स सम है वो क्या होगा? यह हो सकता है, ये प्रीफिक्स क्या होता है? पहले वाला होता है। सो इधर वाले का लाइक लेफ्ट साइड का जो बेस्ट पॉसिबल आपका प्रीफिक्स सम होगा वो होगा, वो हो सकता है। या फिर आपका इधर का पूरा आप सम ले लीजिए, प्लस उसमें से आप राइट का जो प्रीफिक्स ऐड कर दें, लाइक इधर की कुछ लाइक यहाँ तक अपना यहाँ जा रहा है और यहाँ इसके आगे से यहाँ बट लाइक हमने ये पूरी वैल्यू निकाल ली। ये है आपका क्या है? लेफ्ट का सम और प्लस इसमें हम ये वैल्यूज ऐड कर रहे हैं। अगर ये वैल्यूज ऐड करके और अच्छी वैल्यू हो जाती है, लाइक वो आपकी लेफ्ट के बेस्ट प्रीफिक्स सम से ज्यादा हो जाती है तो वो हम ले लेंगे। सो वो वाली वैल्यू ले लेंगे, वो हो जाएगा आपका बेस्ट प्रीफिक्स सम में डाल देंगे। अब सेम टू सेम बेस्ट सफिक्स सम के साथ भी करेंगे, लाइक राइट का वो बेस्ट सफिक्स सम ले लो, या तो एक वो हो सकता है, या फिर राइट का आप पूरा का पूरा सम ले लीजिए, बट साथ ही साथ उसका कहते हैं इसका प्रीफिक्स सम ले लीजिए लेफ्ट का। तो एक ये कंडीशन बन सकती है जिसमें कि वो आपका बेस्ट सफिक्स सम फॉर्म हो सकता है। सो ये चारों अभी देखे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोड के बारे में देखेंगे और देखते हैं नोड में आप क्या क्या भेजेंगे, वो भी एक बार देख लेते हैं। सो नोड में हम लोग जो नोड फॉर्म करेंगे, नोड में हम लोग अपना एक मैक्सिमम सम भेजेंगे, दूसरा हम लोग ने अभी निकाला है सम सम भेजेंगे, बेस्ट प्रीफिक्स सम भेजेंगे और बेस्ट सफिक्स सम। ये आपकी नोड होगी और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो आपकी लाइक अगर के नंबर ऑफ क्वेरीज आ रही हैं तो के इंटू लॉग एन होंगी। लॉग एन बिकॉज ऑफ सेगमेंट्री, बिकॉज सेगमेंट्री आपका डेप्थ में काम करता है, लाइक मैक्सिमम वो आपका उतना ही टाइम लेगा जितना कि ट्री की मैक्सिमम हाइट हो सकती है, और ट्री की मैक्सिमम हाइट आपकी लॉग एन हो सकती है। सो के इंटू लॉग एन में आपकी सारी की सारी क्वेरीज हो जाएंगी और आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोड देखेंगे कि कोड कैसे काम करेगा। थैंक यू, बाय बाय।